الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سامعین محترم و رفیقان ملت اسلامیہ، آج جمعہ کا دن ہے. 2:15 پہ یہ وائس ریکارڈ میں آپ کے سامنے بھیج رہا ہوں. امت کے مابین دفع نزاع کے لیے. سامعین محترم، کل جلیشور قادری رشیدیہ سے ایک ویڈیو سامنے آیا. اس میں عزیز گرامی حضرت مولانا مفتی محبوب مصباحی سلمہ نے حضرت علامہ الشاہ مفتی اعظم نیپال قاضی نیپال حضرت مفتی محمد عثمان برکاتی کے اوپر چند اشکال وارد کیا تھا. اشکال تو یہ، پہلی بات تو یہ کہ ان کی قضات کا انہوں نے انکار کیا. عزیزی مولانا مفتی محبوب صاحب قبلہ سلمہ سن 2007 ہی میں انہیں قضات ملی تھی. علماء اعلام کی موجودگی میں فقیر محمد شوکت علی بھی وہیں پر تھا. علماء نے ان پر اتفاق کیا اور ضرورت کے مطابق انہیں قاضی نیپال بنایا گیا. لمبا عرصہ گزر گیا، لیکن عزیز گرامی کو کیا پتہ کیوں تکلیف ہے، کیا بات ہے. عرصہ دراز کے بعد آج سوال ہو رہا ہے. قاضی وہ ہیں، اس کا انکار ایسا ہی ہے جیسا کہ دن کا انکار یا رات کا انکار، دن کے اجالے کا انکار یا رات کی سیاہی کا انکار. بدیہی چیز کا انکار کیا معنی رکھتا ہے؟ عزیز گرامی، آپ کے انکار سے یا ہمارے انکار سے یا کسی کے انکار سے کیا وہ قاضی نہیں رہیں گے؟ ہیں وہ قاضی، وہ رہیں گے. تو ایسے جھمیلے میں پڑنے سے کیا فائدہ ہے اور ایسا اشکال وارد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب مسلمانوں نے، علماء نے انہیں قاضی بنایا، آپ نے نہیں بنایا، آپ نہیں بنائیے. جن احباب نے نہیں بنایا نہیں بنائے، جنہوں نے ان کو بنایا وہ ان کے قاضی ہیں. اور تعدد قضات یہ جائز ہے. ایک شہر میں کتنے قضات ہو سکتے ہیں؟ یہاں تو ملک بھر کی بات ہے. جائیے باب و آداب القاضی مطالعہ کریں، ہدایہ کے اندر ہے. آپ کے انکار کرنے سے وہ قاضی نہیں رہیں گے ایسا نہیں، وہ قاضی ہیں، رہیں گے. ہاں یہ ہے کہ آپ ہلہ کر کے امت کو پریشانی میں ڈال رہے ہیں. میں تو یہ بھی کہتا ہوں، اور آپ کو ہی ماننا چاہیے اور سب کو ماننا چاہیے کہ ملک نیپال میں جتنے قضات ہیں وہ سب دین کا کام کریں. چاہے حضرت علامہ مفتی محمد عثمان برکاتی دامت برکاتہ القدسیہ قاضی نیپال ہوں، یا حضرت علامہ مفتی محمد عثمان رضوی دامت برکاتہ القدسیہ قاضی نیپال ہوں. سارے قضات کو چاہیے کہ اپنے اپنے منصب کا احترام کریں اور اپنے اپنے منصب کے مطابق کام کریں.
साथ में एक दूसरे से बैर न रखें, एक दूसरे के ऊपर छीटा कशी न करें। आपको मालूम है कि बहुत सारे मसाइल में क़ुज़ात की ज़रूरत पड़ती है। जैसे किताबुल क़ाज़ी अल क़ाज़ी, एक काजी का ख़त दूसरे काजी तक चला जाए तो वो बाब रुयत हिलाल में वो सबूत है। अब आप बताइए, काजी चंद नहीं रहेंगे तो किताबुल क़ाज़ी अल क़ाज़ी कैसे होगा? इससे भी मसला साबित होता है कि एक मुल्क में चंद काजी होते हैं, रहे हैं, माजी में भी अभी भी हैं, तो हो गए तो आपको झमेला क्या है? मैंने बार बार सुना कि मुफ्ती महबूब साहब कह रहे हैं कि उनकी वो काजी कैसे हो गए। आप बम्बई में हैं, अब वो कैसे काजी हो गए? तो एक मरतबा मिल कर के बहस करने में क्या हर्ज है? आप दूसरे में आपने कहा कि फस्ख़े निकाह किया था तो वो गलत कर दिया था। जिस फस्ख़े निकाह की बात करते हैं, आपको मालूम है ना, अदम निबाह की सूरत में फस्ख़ निकाह जायज़ है, ये मालूम है ना आपको? वहाँ जो सूरत थी वो यही सूरत थी। अदम निकाह की बिना पर, अदम निबाह की बिना पर उन्होंने फस्ख़ निकाह किया था। आपको अब तक मालूम ही नहीं है। उसको लेकर के आप मुआवजा बना करके, यानी चूटी को पर्वत का पहाड़ बना करके आप पेश कर रहे हैं। अजब बात है। वो कोई बात हुई? अभी कशका का मसला है। आप कल कह रहे थे कि मसूल अनहों से हमको कोई बहस नहीं है, कशका से हमको बहस है। ये अजीब बात है। कशका से, तो कशका के कुफ्र होने का किसने इनकार किया है? मुफ्ती मोहम्मद उस्मान साहब बरकाती ने कहा है कि कशका लगाना कुफ्र नहीं है, उन्होंने कह दिया है क्या? अरे जिन्होंने कशका लगाया, इर्तिकाब कशका किया, उससे बहस किया है, मसूल अनहों से मुतालिक बहस किया है, और किस सूरत में किया वो, तो उस पर जो बहस है लुज़ूमी या इल्तिज़ामी की बहस, ये फतावा रज़विया से मुस्तफ़ाद है। उसका माखज़ आप देख सकते हैं। आप जलेश्वर उतना दूर चले गए लेकिन यहाँ नहीं आ सके। आपको आ जाना चाहिए था, हमसे भी रब्ता करते, आप मुफ्ती साहब से भी जाके बहस करते। वहाँ जाके बहस करने में क्या हुआ? आपको खा जाएंगे क्या? या किसी आलिम से मिलने में क्या हर्ज है? लेकिन आपने उसको बना दिया, राई के दाने को पर्वत का पहाड़ बना करके और वीडियो वायरल किया। ये भी कह दिया कि फतवा ये मसला के आला हज़रत का खून हो रहा है। किस जगह पर मसला के आला हज़रत का खून हुआ है? कब कर दिया उन्होंने मसला के आला हज़रत का खून? उन्होंने फस्ख़ निकाह किया, मसला के आला हज़रत का खून कर दिया। अस्तग़फिरुल्लाह वला क़ुव्वत। और उन्होंने मनसब क़ज़ा को संभाला तो ये मसला के आला हज़रत का खून हो गया क्या? कशका के मुतालिक, कशका लगाने वाले से मुतालिक उन्होंने फतवा सादिर किया कि वो तौबा कर लें, तो मसला के आला हज़रत का खून हो गया क्या? क्या आप उनको तौबा का लुज़ूम उस पर आप नहीं बताते हैं क्या? और अगर आपको किसी मसला में कुछ था तो दू बदू बैठ करके बात करने में क्या हर्ज है? वहाँ बम्बई से नेपाल आने में आपको कोई परेशानी नहीं होती है, और यहाँ से फैज़ान मदीना जाकर बहस करने में या बात करने में परेशानी हो गई, और मसला के आला हज़रत का खून करने वाले का आप दूरे से वीडियो वायरल करके बता रहे हैं कि मसला के आला हज़रत का खून कर रहे हैं। 2 दिन हमारे पास टाइम है, 2 दिन हमारे पास टाइम है, 2 दिन हमारे पास टाइम है। पता नहीं कितना कलील वक्त है आप, है नहीं? 2 दिन वक्त है, 2 दिन वक्त है, कितना कलील वक्त है और कितना आप मसरूफ़ हैं। हाँ, मालूम होता है कि आपसे ज़्यादा किसी से कोई मसरूफ़ ही नहीं है, और पूरे मसले के आला हज़रत की ठेकेदारी मालूम होता है आप ही को मिली हुई है। आप हुक्म नाफिज करने चले हैं। आइए, मैं बैठा हूँ गुलशन अजमेरी में ही 8 नंबर में हूँ। वो जितने फतवा दिए हैं और जिन जिन मसले पर आपको एतराज़ है उसके नकुल लेकर के
माल हुआ मा आले आइए और दिखाइए कहाँ कहाँ ऐसा है। जब आप जलेश्वर दौड़ के जा सकते हैं तो 8 नंबर वार्ड में आने में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उम्मत को इश्तिबाह में डालना, परेशानी में डालना, पेचीदगी में डालना अच्छी बात नहीं है। तो कश्का से मुतालिक उनका भी कौल यही है कि कुफ्र है, और जो उन्होंने इक़्तिबास लिया है वो फतवा रज़विय्या से मुस्तफ़ाद है। फतवा रज़विय्या से इस्तिफ़ादा करने वाला गद्दार मसलक आला हज़रत हो गया क्या? मसलक आला हज़रत का खून करने वाला हो गया क्या? जहाँ भी वहाबियों नज़दियों से जितना रद्द उन्होंने किया है और मसलक आला हज़रत का झंडा जितना ऊंचा उन्होंने बुलंद किया है, आप ख्वाब में भी नहीं देख सकते हैं। किसी भी आलिम रब्बानी के ख़िलाफ़ बकवास नहायत ही बुरी बात है। रुजू कर लीजिए, रुजू कर लीजिए, रुजू कर लीजिए। आपने कादरिया में टाइम रखा, उन्होंने कहाँ टाइम दिया था आपको? कादरिया में रखने का टाइम मुफ्ती मोहम्मद उस्मान ने आपको दिया था कि कादरिया में बैठिए, फलां रोज़ हम आ रहे हैं। आप गिरोह में कहाँ बात किए? आपसे उन्होंने कहा था कि दावा तय कीजिए, आपसे उन्होंने कहा था कि लेटर पेड जारी कीजिए, आपने कुछ भी नहीं किया। धड़ल्ले जाके वहाँ चले गए। कादरिया के मुदर्रिस से मौलाना मुफ्ती अशरफ से बात हुई, उन्होंने कहा कि हमारी रूह को भी खबर नहीं थी, और ये लोग आके बैठ गए। बहस ऐसी ही होती है क्या? बहस होती है, बैठ करके बहस होती है, और अच्छे मुफ्ती का काम है कि वो मसनद इफ्ता पर बैठ ही करके वो बहस करेगा। हाँ, वो जगह जगह दौड़ा नहीं फिरेगा। तो आपको फैज़ान मदीना में आने की में क्या हर्ज है, क्या दिक्कत है? 2 रोज़ का टाइम है, 2 रोज़ का टाइम है। मसलक आला हज़रत का खून कर रहे हैं। कौन कहता है मसलक आला हज़रत का खून कर रहे हैं? मुफ्ती उस्मान बरकाती। गलत बात है, और किसी पर बुहतान तराशी अच्छी बात नहीं है। बुहतान तराशी से एहतराज़ करना ज़रूरी है। अगर बुहतान तराशी से एहतराज़ नहीं करते हैं और उम्मत के माबैन इफ्तिराक का काम कर रहे हैं तो बुरी बात है। हमारे जो भी अकाबिर अहले सुन्नत है उनका एहतराम किया जाए, चाहे हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद उस्मान बरकाती काज़ी नेपाल हो, चाहे हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद उस्मान रज़वी हो, चाहे हज़रत अल्लामा फ़ख्र नेपाल साहब क़िबला हो, सबका एहतराम होना चाहिए। ये सोच रहे हैं कि किसी एक की ताबेदारी करके दूसरे की तज़हीक करेंगे तो दूसरे गिरोह वाला हमारे गिरोह को कुछ नहीं कहेगा, ये बेवकूफ़ी है, ये समझ की कमी है। अगर आप उनके ख़िलाफ़ बोलेंगे तो वो उनके मानने वाले इनके ख़िलाफ़ बोलेंगे। और बहस का मतलब मकसद होना चाहिए पाक। मुनाजरा 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 क्या है? मुनाजरा होता है कहाँ? मुनाजिर का पता ही नहीं है, मुनाजरा करने के लिए चले हैं, और वो भी कश्का के मसले पर चले हैं। कौन नहीं जानता है कश्का का मसला क्या है भाई? और आप जो उस मसले पर बिल्कुल एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। कभी फस्ख़ निकाह पर एड़ी चोटी का जोर, कभी उनके काजी होने पर, कभी इन पर, कभी उन पर। क्या यही नया बाब आपको मिलता रहता है क्या? और कोई काम नहीं है? बहुत सारे काम हैं दुनिया में अभी। इंसानों को इंसान बनाइए, शराबियों को शराब से तौबा करवाइए, मसलक आला हज़रत का प्रचार कीजिए, और उम्मत के माबैन दौड़ धूप करके तबलीग व इशाअत का काम कीजिए, मुल्क लेवल पर काम कीजिए। बहुत सारे काम आपके पास है। रगड़ा करने से आपकी अज़मत नहीं बढ़ जाएगी। रगड़ा और झगड़ा से अज़मत नहीं बढ़ती है, अज़मत बढ़ती है काम करने से। रगड़ना, झगड़ना और बेजा मुबाहसा करना, इससे इंसानों की अज़मत नहीं बढ़ जाती है। कम आप सोचते होंगे कि हमारी अज़मत इसमें बढ़ रही है और हम हाईलाइट हो रहे हैं, हालांकि ये अच्छी बात नहीं है। हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद उस्मान बरकाती ये उलमाए रब्बानी में से हैं और मुल्क के नेपाल में ज़बरदस्त आलिम है। लंबा हो गया। उनका एहतराम ज़रूरी है, सारे उलमा का एहतराम ज़रूरी है। इसलिए मैं कहूँगा, अगर आपको बात करनी है उनके किसी मसले पर, किसी फतवे पर आपको वहीं कहीं इश्काल नज़र आ रहा है, तो मैं गुलशन अजमेरी में बैठा हूँ, वो काठमांडू में है। आप आइए लेकर के, हम देखेंगे उसे कहाँ कहाँ आपका इश्काल वारिद होता है। अगर शौक़ होगा तो मुबाहसे के बीच में वीडियो भी कर लीजिएगा ताकि आपका शौक़ पूरा हो जाए, और अगर नहीं शौक़ है तो चुपचाप सुन करके समझ करके
گھر بیٹھ جائیے گا اور خواہ مخواہ کو کسی عالم کو بدنام مت کیجیے. وما توفیق الا باللہ.